hatch cover types, general description, design, survey, testing for weather tightness, maintenance procedures, and some defects. Now, if you see this hatch covers, the basic purpose of our basic purpose for this hatch cover is to protect cargo. Now, if you see, if we cannot protect cargo, if we have the claims, cargo claims के जो statistics है, if you see, आपके सामने the cause of large cargo claims by value, dry bulk and general cargo vessels, the maximum cargo claim is due to hatch cover leaks, 33%. So whatever effort we do in loading, carrying, discharging the cargo, but if we cannot carry this cargo or cannot discharge the cargo in the same condition, so we also feel that we have failed in our duty. And one of the major reason is again the hatch cover leaks. Now, hatch covers, the purpose and function of a hatch cover and its combing is to prevent ingress of water into cargo hold after a large opening has been cut in the deck for cargo access. And these hatch covers are a movable structure designed to a weather-tight standard. And this design is continuously evolving to meet changing trading needs. If you see right from the sailing days when these holds were covered by these wooden planks, tarpaulin. And today, if you see, and then the steel hatch covers came, the steel ships came. And with the steel ships, your hatch covers also of steel type, and it has evolved. So this is again from the day I was sailing, even we have seen this wire pull type of hatch covers with the crane, with the derricks, with the same winches. कि एक वायर से आप खोलते थे, दूसरी वायर से आप इसको बंद करते थे, and you have this total mechanical system, no hydraulic, no oil, nothing. And slowly came this another generation of single pull wire operated and folding type. And then you had this by the time the hydraulics came, and then this hydraulic motor, hydraulic pipeline, and just a control. So उससे पहले क्या था? I remember with this wire pull type hatch covers only crew. चलो अभी रात को hatch cover खोलना है, बंद करना है. So that's why we had 50 to 60 people on the ship. अब जैसे हाइड्रोलिक्स आ गया तो क्रू थोड़ा साइड पे हो गया कि जी ड्यूटी ऑफिसर वही हाइड्रोलिक्स को ऑपरेट करेंगे. तो हैच कवर खोलना बंद करना immediately came on the duty officer. And then another design, hydraulic folding type. अभी ईज तो होगी, लाइफ वाज वेरी इजी कि हाँ यार प्रेस बटन सिस्टम जॉयस्टिक से आपने ओपन क्लोज कर दीजिए, पंप चलाइए. बट इसकी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स अगेन कि हाइड्रोलिक सिस्टम इज हाइड्रोलिक, कभी पाइप बस्ट होगी, कभी कुछ हो गया, हैच कवर टेढ़ा जाता है, तब डेंजरस. न्यू शिप्स तो ओके. सो lot of things came on the design and maintenance. And ये तो आपके simple hydraulic covers. Now came the side rolling for big bulk carriers. You have the side rolling. ये भी again wire pull type है, hydraulic type है, hydraulic jacking up, jacking down, securing the hatch covers. So you have seen guys who have been working on bulk carriers, general cargo ships. So this is again how the design has been changing as per the trading needs. And then came the stacking type, multi-folding type. एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखो, दूसरे के ऊपर रखो. And slowly today what we see these container ships. Now they have to take such a load on the hatch covers, तो उनकी strength भी increase day by day. अब जब strength increase हुई तो उनका weight भी increase हो गया. Today the hatch covers close to 25-30 tons each cover is. तो उसको hydraulically handle करना भी मुश्किल था, तो lift on lift off type आपका सिस्टम बन गया. So सब कुछ ही I don't know what is the future, but so far we could never imagine this thing. I could never imagine कि यार हैच कवर जो है ऐसे बनेंगे कि उठाए और जेटी पे रखे और वापस शिप पे रख दिए. And
वाटर टाइटनेस या वेदर टाइटनेस भी मेंटेन होगी। बट इनकी भी अपनी प्रॉब्लम है, नथिंग इज प्रॉब्लम फ्री, प्लस माइनस तो सब में है। Now the design of steel hatch covers has evolved to meet new requirements since they were first introduced in 1920s. And in 50s, hatch panel size and numbers had so increased that the ship's cargo gear, if fitted, could no longer provide the power required to open and close the hatch covers. अब पहले जो wire pull type थे, those hatch covers were small, so easily wire से handle हो सकते. So जैसे जैसे ships का डिजाइन चेंज होता गया, साइज बड़ा होता गया, hatch covers का डिजाइन भी बड़ा होता है. The need for the self-propelled or self-activated system was met at that time by the introduction of hatch hydraulics. And these in turn were superseded on geared bulk carriers by direct pull hatch covers, where saving could be made by avoiding the use of hydraulics. तो उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक विंच लगा दी, उसके ऊपर वायर्स थे, उसकी अपनी प्रॉब्लम थी कि बाई चांस कुछ गड़बड़ हुई, एंड इनवेरिएबली व्हेन देयर इज अ रेन, इमरजेंसी में भाग के उसको करेंगे, वायर टूट गई, खत्म, ना हैच कवर बंद हो सकता है ना खुल सकता है. So last 20 years have seen the development of variety of hatch covers types and different situations. These include folding, rolling, piggyback stacking, and lift away and coiling type of, all type of hatch covers are even existing today. ये नहीं है कि पुराने वाले सब खत्म हो गए. Small ships में still old type of hatch covers are there. A modern set of hatch covers is of course of large dimensions and must possess greater strength to withstand the high deck loading from deck cargo. तो ये रिक्वायरमेंट अभी बनी, इसके लिए ये हैच कवर्स का साइज बड़ा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, एंड देन दे से कि भैया इसके लिए तो बेटर ऐसे लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ टाइप बना दीजिए. Now typically hatch covers are lightweight steel grillages. Modern design methods using finite element of technology enable more efficient material distribution, which results in lighter, thinner structures, what we call high tensile steel. If they use, naturally the structure becomes lighter. Strength we have, but buckling is very easy. So construction from high tensile steel results in even thinner plate being used. And for this reason, these lightweight structures must be handled with care. So अब आपके ऊपर ये सारा का सारा आ जाता है, because how we handle, how we maintain, how we care these covers. And prevention of corrosion, definitely. हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा सॉल्ट वाटर एटमॉस्फेयर है, सॉल्ट तो आना है, स्प्रे, एवरीथिंग इज देयर. So corrosion, basic idea of corrosion is from reducing the thickness. उसकी strength ना reduce हो, that's why we maintain. Now if you look at these hatch covers, now इनमें by looking at this figure, lot of things you can understand. Hatch combing, and this is your hold, and this, if you see, this is basically the compression bar, where your rubber packing comes and rests, and which gives that weather tightness for the hatch cover. The plate है इसके ऊपर आपका, on top it is a stainless steel की basically half round bar type is welded here, so that it doesn't the packing, so it is a round half round type, and stainless steel है तो उसको rust का भी chances कम होते हैं. हाँ, yes, it can get damaged, bend, या by chance कुछ लगा इस पे, then there is a problem. So इसकी मेंटेनेंस अदरवाइज स्टेनलेस स्टील है, रस्टिंग भी नहीं होगी. एंड जो हैच कवर्स हैं बेसिकली आपके, दे डू नॉट पुट द फुल वेट ऑन दिस कंप्रेशन बार, पूरा वेट उसका रबर पैकिंग पे नहीं आता, एंड दैट पार्ट ऑफ द वेट इज टेकन केयर बाय दिस रेस्टिंग पैड्स. एंड देन यू कम, इफ देयर इज अ स्लाइट सीपेज ऑफ वाटर, देन यहाँ पे आपका ये जो चैनल है, दिस इज कॉल्ड डबल ड्रेन चैनल. तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत पानी आएगा, देन अगेन दिस इज अ चैनल, इट शुड ड्रेन डाउन, ड्रेन आफ्ट. अगेन यहाँ पे थोड़ी सी ये एक प्लेट बनी हुई है विच विल नॉट अलाउ द वाटर टू गो इन. अब अगर ये पूरा का पूरा चैनल आपका पानी से भर गया एंड देयर इज नो ड्रेनेज,
पीछे इसका ड्रेन वॉल्व होता है. If that drain wall is choked and if you don't care, then water will enter into your cargo hold. और सबसे पहले ये सारे के सारे बल्कहेड आपके स्ट्रेन होने शुरू हो जाएंगे. And anybody, any authority coming and looking at it, the weather tightness of the hatch cover, जैसे आपने hatch cover खोला, ये bulkheads लाल दिखे, so the people know the hatch covers are not weather tight. And फिर एग्जामिनेशन शुरू होता है, फिर टेस्टिंग शुरू होगी कि हाँ जी बताइए. तो इसके लिए इन चीज़ों को, दीज आर द बेसिक थिंग्स. ठीक है, स्टील कवर है, चाहे वो लिफ्ट ऑन टाइप है, चाहे वो हाइड्रोलिकली है, स्लाइडिंग टाइप है, फोल्डिंग टाइप है, दे ऑल कम and basically the rest and make a weather tight joint here. Compression bar, what we call is a compression bar. And this double drain channel, the inner drain channel जो है, इसे भी हमें उतना ही मेंटेन करके रखना है, उतना ही साफ रखना है, so that whatever water comes in, it drains quickly. Now this is your resting pad. Now, a lot of time, since you have not handling or maintaining these covers, so slowly जैसे जैसे आप इसे काम करते जाओगे, you will be learning it. A lot of weight of the hatch cover is taken by this resting pad, which is resting here. So ये जो आपकी flat plate है, it's called the skirt of the hatch cover, जो side plate है. अब देखिए थोड़ी सी flat plate जो combing की plate है, उससे थोड़ी सी ऊपर होती है. It is not resting on this. इसके अंदर आपकी rubber packing है. Now that packing, इसके अंदर जो packing है, that is resting on the compression bar, and at the same time इसका जो maximum weight है, which is taken care by the this resting pad also. So ये एक नहीं है, at least 3 or 4 on one side and 2 or 3 on the sides, port starboard and fore and aft sides पे भी ये बने होते हैं. So equally they take the weight so that your hatch cover is probably in a safe condition. अब चलते चलते डेक पे आप देखोगे, इफ यू सी दिस, ये प्लेट है, जैसे ही आपकी कंप्रेशन कम होता जाएगा, रबर पैकिंग जो है परमानेंटली, अगर ग्रूविंग उसमें आ गई, परमानेंटली कंप्रेस हो गई, उसकी कंप्रेशन खत्म हो गई, तो ये प्लेट यहाँ पे टच करनी शुरू कर देगी, बैठ जाएगी ये प्लेट. या फिर आपका ये जो रेस्टिंग पैड है, ये इसकी थिकनेस कम हो जाती है. आई होप डू यू हैव एन आइडिया. हाँ जी, मटेरियल होता है क्या, जैसे सर जो अपने वाटर टाइट डोर, वो जो वेदर टाइट डोर्स होते हैं, वो जो अलग सा मटेरियल नहीं होता वो पैक करने के लिए, ऐसा कुछ लगा होता है यहाँ पे? या रबर पैकिंग, इसके अंदर तो रबर पैकिंग होती है. जैसे वाटर टाइट डोर की वो पतली होती है, ये थोड़ी थिक होती है. आई शो यू. वो पीडीएफ ही सब क्या हैच कवर में लगा होता है ना सर वो तो? या ये तो आपका कवर है, ये आपकी कोमिंग प्लेट है, इसके अंदर होगी रबर पैकिंग, इसके अंदर रबर रिटेनिंग चैनल रहता है. अच्छा सर रेस्टिंग के अंदर तो नहीं होता ना, तो एक प्लेट होती है हार्ड जिस पे रेस्ट करता है वो. नो ये आ गया ना रेस्टिंग पैड, तो ये आ गया, ये रेस्टिंग पैड, ये आपका हैच कवर है. नाउ दिस इज द कोमिंग, ये आपकी कोमिंग प्लेट आ गई, फ्लैट कोमिंग, ये कोमिंग स्टेज नीचे, ये आपकी कोमिंग प्लेट है, ये फ्लैट प्लेट ऑफ द कोमिंग है. इसके ऊपर आपका ये हैच कवर रेस्ट कर रहा है, चाहे वो रोल करके आए, चाहे वो लिफ्ट ऑन टाइप है, एंड देन इट विल रेस्ट ऑन दिस रेस्टिंग पैड. अब ये भी है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कि सर ये इसमें रेस्ट करता है, तो ये कैसे घिसेगा. रेस्टिंग पैड जो है, ये जो हैच कवर्स हैं आपके, चाहे आपने इनकी क्लीटिंग भी की हुई है, दिस हैच कवर्स बेसिकली मूव, ये इसके ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे. व्हाई? बिकॉज द शिप इज फ्लेक्सिंग एट सी, शिप कीप्स ऑन बेंडिंग. अब जैसे ही शिप बेंड होगा, तो ये हैच कवर जो है, आपको अगर आप डेक पे कभी चलो तो आवाज भी आती होगी, स्क्वीकी नॉइस, ची ची की नॉइस आती है. दिस हैच कवर एक्चुअली कीप्स मूविंग, ये स्लाइड करते हैं इसके ऊपर. एंड यू हैव दिस, इनको सिक्योर करने के लिए वी हैव दिस क्लीट्स. वो क्लीट्स कैसी हैं? लाइक दिस क्विक एक्टिंग क्लीट्स, कि आपने यहाँ पे इसको डाला एंड देन यू इस चीज को नीचे गिरा दीजिए, ये टाइट हो जाएगी. ये हाइड्रोलिक सिस्टम भी है, एक प्रेस बटन किया तो सारी क्लीट्स ऑटोमेटिकली एक ही बारी में लग जाएंगी. बट दिस इज द बेस्ट सिस्टम, दिस क्विक एक्टिंग क्लीट्स व्हाट वी कॉल. अब ये जो क्विक एक्टिंग क्लीट्स हैं, इनमें भी नीचे जहाँ पे ये कोमिंग पे है, यहाँ पे इसमें गैप रहता है, ये जो होल है इसका बड़ा है, तो ये हैच कवर क्लीट के साथ ही आगे पीछे स्लाइड करेगा. सो आपको इस क्लीट को भी इतना टाइट नहीं करना कि हैच कवर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दो.
देन कहीं ना कहीं वेल्ड में क्रैक आ जाएगा, बिकॉज द शिप इज फ्लेक्सिंग। शिप तो बेंडिंग होती है उसकी। सर ये जो 4.3 वाला डायग्राम है सर, दूसरा वाला, इसमें हाँ जब जी, हमने एक तरीके से ऊपर से इसको दबाया है तो ये नीचे आ गया है, ये दबा के इसको ये यहाँ पे लग किस पे रहा है सर ये? ये कोमिंग है ना, ये देखो ये कोमिंग की प्लेट है, ये जो बल्ब है दिख रहा है ये कोमिंग प्लेट है। ठीक है इसके सर। नीचे से इसके बीच में होल होता है यहाँ पे, ठीक है सर। इसमें से होल है, ये रॉड पास करेगी, और यहाँ ठीक पे है। ये रबर पैकिंग है, ये स्टील की प्लेट्स होती हैं। अच्छा ठीक है सर। ये नीचे नट है, आप इसको खोल के आप इसको चेंज भी कर सकते हो। स्टील की प्लेट को अंदर वाली जो डार्क या, कलर की है सर ये? ये जो है, ये जो ये दिखा रहा है, दिस इज अ वॉशर, दिस कॉल्ड नियोप्रेन वॉशर। ओके ये सर। तो इसके अंदर थिक रबर की वॉशर होती है गोल जैसी, ये रॉड चल रही है, दिस इज व्हाट द बेसिकली द क्लीट, ये रॉड है, ये इसके ऊपर थ्रेड होते हैं, ये जो दिख रहा है थ्रेडेड पोर्शन है। यस सर। तो वो तो आप हाइट एडजस्ट कर लेंगे उससे तो। या करेक्ट, सो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये नीचे नट है। नॉर्मली ठीक वेरी है। डिफिकल्ट इतने सारों को मेंटेन करना, या तो ये रस्टेड जैम होंगे, अगर आप अच्छे चीज वॉशर हो, टाइम है आपके पास, अगर ये फ्री है, नथिंग लाइक इट, तो इससे हम इसकी जो है टाइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो आपकी क्रच है बेसिकली, यहाँ पे ये लग वेल्डेड होता है, हैच कवर के ऊपर लग है, आपने इसको उठा के आप नीचे भी गिरा सकते हो। इसको उठाया, फिर यहाँ पे रॉड डालते हैं, एक छोटी सी रॉड, इसके अंदर होल होगा, यहाँ पे रॉड यस। डालोगे, इस चीज़ को बेंड करोगे, छोटी सी प्लेट है, इसको बेंड करोगे, फिर ये टाइट हो जाएगी, फिर नहीं हिलेगी। निकालने के लिए इसको वर्टिकल कीजिए, अब आप इसको हाथ से उठा के आप नीचे गिरा दीजिए, ये कॉमिंग पे रेस्ट करेगी, बस ये पूरी रॉड इसके नीचे आ जाएगी। सर सर कोई वीडियो वगैरह है क्या सर इसकी? चलो, चल गुड यू रिमाइंडेड, आई सी इफ आई कैन गेट फ्रॉम द यूट्यूब, अगर मिलते हैं तो फिर आपको। यस, वेरी नाइस। ये रेस्टिंग पैड का जो क्रॉप रिन्यू करते हैं, उसका कुछ रेगुलेशंस भी है? बच्चे, ये जो रेस्टिंग पैड है, इसका क्या होता है कि यस, आफ्टर सम टाइम, अगर ये जैसे कहते हैं ना कि ये घिसने घिसने से इसकी थिकनेस कम हो जाती है, तो ये जो आपका हैच कवर है और नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, यहाँ टच करना शुरू हो जाएगा। सो नॉर्मली वी पुट अ शिम। शिम क्या होती है? पतली प्लेट होती है। सो यू वेल्ड दैट प्लेट ऑन टॉप ऑफ दिस। आप इसको, ये तो हैच कवर से उठ जाएगा, ये कोमिंग के ऊपर वेल्डेड है, ये जो पैड है दिस इज वेल्डेड ऑन द कोमिंग, इसके ऊपर एक शिम वेल्ड कर देते हैं। शिम इज बेसिकली अ थिन प्लेट, मे बी 4 mm 3 mm, डिपेंड्स कितनी आपको क्लियरेंस चाहिए, बट वो इक्वल होना चाहिए सब पे। बट तो सर वो तो कंस्ट्रक्शन के मेजरमेंट लेके करते होंगे, कितना हाइट करेक्ट, सबका है। करेक्ट, करेक्ट। सो अब ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज पोर्ट में तो ये आप वेल्डिंग तभी कर सकते हैं जब ये हैच कवर, अगर तो ये हाइड्रोलिक हैं, खुलने वाले हैं, लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ टाइप वाले, तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज पोर्ट में ही खुलेंगे, आप उसको ना खोल सकते हो ना बंद कर सकते हो, गेंट्री नहीं उठाने हैं। तो ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर आप इसको ड्राई डॉक के लिए रख देते हो कि भाई ड्राई डॉक में जाके आप इसकी सबकी क्लियरेंसेस चेक करेंगे। मेजर प्रॉब्लम इज द रबर पैकिंग। अगर आप देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी रबर पैकिंग के साथ। क्लीट्स, इनकी मेंटेनेंस टफ जॉब है, ये सिंपल, मेरी जान चली जाती है लॉट ऑफ टाइम। आई हैव टू, फर्स्ट थिंग आई ज्वाइन द शिप एंड यू विल फाइंड, अगर आपके पास 6 होल्ड्स हैं या 7 होल्ड्स हैं या 5 होल्ड्स भी हैं, एक एक में दुनिया भर की क्लीट्स होती हैं, एंड स्पेशली अंदर वाली जो बीच में है, रिसेस में है, वो तो एक्सेसिबल ही नहीं होती, तो उसको ग्रीसिंग करना इज टफ। फिर वही था कि रिक्वेशन करो, मंगाओ, वेल्डर को लो, उसको बोलो यार इसको काटो, निकालो, दूसरी डालो, बट अगेन सुपरिटेंडेंट वही होगा कि ठीक है यार, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू गिव यू न्यू वंस, बट प्रोवाइडेड दे आर मेंटेन्ड। अब इसकी मैंने अगर ग्रीसिंग नहीं की, ये नट ही नहीं खुलेगा, एडजस्ट ही नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ें जो है, वी विल सी कि इसकी मेंटेनेंस कैसे आती है। ये हाइड्रोलिक के लिए, इस पे भी आई हैव वर्कड ऑन वन ऑफ द टाइप ऑफ शिप्स, देखने में बहुत आसान लगती है, यहाँ यार जस्ट प्रेस बटन किया है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी क्लीट्स जो हैं बंद होती जाएंगी, बट एक भी मिस अलाइन हुई तो कोई भी क्लीट नहीं लगेगी, इसकी अपनी प्रॉब्लम है। सो आई स्टिल प्रेफर ये वाली क्विक एक्टिंग जिसे कहते हैं, दीज आर द बेस्ट। खराब भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये आपका आ गया, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन रिटर्न ड्रेन वॉल। ये आपके जो अंदर का जो डबल ड्रेन चैनल है, उसमें से जो पानी अंदर आएगा उसको ये ड्रेन करेगा। हाउ इट इज फिटेड लाइक दिस, आफ्ट ऑफ द कोमिंग, ये आपकी क्लीट्स हैं, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। ये आपकी क्लीट नीचे है, फ्लैट प्लेट में यहाँ से होल होता है, इसके थ्रू ये रॉड पास करेगी,
यहाँ पे आपके नीचे रबर पैकिंग एंड 2 स्टील प्लेट्स आते हैं। तो आप इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी रॉड से आप इसको अपनी तरफ खींचिए, फिर ये क्लीटिंग लग जाएगी, क्लीट लग जाएगी। खोलना है तो इसको वर्टिकल कीजिए, फिर आप इसको उठा के नीचे रख सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि अगर हम इसको क्लीट कर देते हैं, नेचुरली इसको थोड़ा तो हम कंप्रेशन देंगे, थोड़ा तो ये टाइट है, हैंड टाइट नहीं होती, थोड़ी तो टाइट होती, बट इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, बिकॉज इस हैच कवर ने मूव करना है। इसी के साथ यहाँ ये जो होल है ये काफ़ी बड़ा होता है, तो ये रॉड जो है हैच कवर के साथ ही आगे पीछे मूव करेगी। lot of time, lot of people, lot of even senior chief officers, they don't understand this. ये hatch covers basically they slide at sea, ये ची 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 करते रहते। even container ships with 100 containers on top, ये hatch cover जो है आगे पीछे मूव करेगा। जितना बड़ा शिप होगा, जितना लॉन्गर शिप होगा, उतना वो ज़्यादा फ्लेक्स करेगा। एंड ये आपका ड्रेन चैनल आ गया। ये ड्रेन वॉल में प्लास्टिक का होता है बेसिकली, आजकल 2 पार्ट्स में। इसके अंदर एक छोटा सा रबर बॉल होता है, एंड ये जो पाइप है ये आपकी उस चैनल से आ रही है, जो हमने चैनल देखा है ये वाला। ये चैनल आपने कवर रख दिया, यहाँ पे रबर पैकिंग आ गई, एंड बाई चांस इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी जाता है अंदर से, हाई प्रेशर से सी स्प्रे आ रहा है या वेव आ रही है, तो वो पानी इस चैनल में आ जाएगा। इस चैनल से ये पीछे आपका ये वॉल लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब ये इतना साफ तो होगा नहीं चैनल, स्पेशली इमेजिन बल्क एरिया, कि कई बार हम जल्दी में होते हैं। नॉर्मली अदरवाइज कंप्रेस्ड एयर से हम वो चैनल को पूरा ब्लो थ्रू करके फिर हैच कवर बंद करते हैं। तो वो चैनल जो है ठीक है, चाहे उस पर रस्ट हो, बट मट्टी कचरा डेब्रिज नहीं होनी चाहिए। पहले तो हम ब्रूम से करते थे, बट इफ यू हैव द कंप्रेस्ड एयर सिस्टम इज नाउ देयर, कंप्रेस्ड एयर इज देयर, वो बोसन वगैरह बना के रखते हैं। रबर पाइप के आगे एक स्टील की, कॉपर की एक पाइप लगा देंगे छोटी वाली, 1 मीटर लंबी, तो उससे यू ब्लो थ्रू क्लीन द चैनल, ताकि ये ना हो। अदरवाइज क्या होता है, तो चैनल के अंदर मट्टी है वो सारी यहाँ पे आके अंदर रबर बॉल है, इट्स लाइक अ नॉन रिटर्न थिंग, कि पानी आ सकता है, एंड अगर यहाँ पे डेक पे सी वेव्स मारेगी तो पानी यहाँ से अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे बॉल फ्लोट होता है, एंड इनवेरिएबली यू विल सी एज अ चीफ ऑफिसर लेटर स्टेजेस पे जब आप जाओगे, आप इसको खोलोगे तो इमीडिएटली सारा पानी आएगा। अब बोसन वगैरह को पता ही ये चीज़। अब उन्होंने इसका सिंपल मेथड निकाल लिया कि यार इसको खोलो, इसके अंदर से बॉल निकाल दो, ताकि पानी चोक ही ना हो। ये चीज़ चोक ही ना हो, पूरा का पूरा पानी आराम से ड्रेन होता रहे। अब दे डोंट रियलाइज दैट कि इस बॉल का पर्पस क्या है यहाँ पे लगाने का। इट इज़ बेसिकली जैसे हमारी एयर पाइप्स होती, ये डेक के पानी को, डेक पे अगर स्प्रे आता है या हैवी वेव्स आती हैं, तो वो आपका पानी अंदर हैच में नहीं जाना चाहिए। एंड इनवेरिएबली जब सर्वे होगा, सर्वेयर आएगा, कहेगा अच्छा, उसको देखेगा, खोलो अंदर बॉल ही नहीं है, आ गई डेफिशिएंसी। नॉर्मली यहाँ पे इसके नीचे कैप भी रहता है, चेन के साथ, एक चेन के साथ इसका कैप होगा, आप इसको बंद भी कर सकते हो। कब हमें बंद करने की जरूरत पड़ेगी? डू वी नीड एनी टाइम टू क्लोज दिस ड्रेन वॉल? अब ये देखिए, इट इज अटैच्ड। अब मैंने आपको ये चैनल दिखाया है, आपका हैच कवर ये आ गया, ये चीज जो है दिस इज ओपन, ये हैच कवर के साथ है। रबर पैकिंग यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, ये पैनल थोड़ा नीचे रहता है, ये वाली प्लेटिंग नीचे होगी, है इसकी भी हाइट रहेगी ताकि पानी जो है जाए ना। बट अगर जब पानी भर गया तो ये भी ज़्यादा 2 या 3 इंच ही होगी, 2 इंच से ज़्यादा नहीं बड़ी होती। द वाटर कैन गो इनसाइड एंड दिस इज ओपन टू योर डेक। अब ये पूरा चैनल जो है उस ड्रेन वॉल के थ्रू आ रहा है। नाउ इमेजिन इफ यू हैव टू रिलीज CO2, एंड अगर मेरा ये ड्रेन वॉल खुला है तो गैस तो यहाँ से जाके ड्रेन वॉल से भी पूरी की पूरी गैस बाहर निकल जाएगी। तो उस सिचुएशन के लिए ये ड्रेन वॉल अंदर से ऐसा दिखता है। अब यहाँ से ऊपर से पानी आएगा, इट कैन ईजिली ड्रेन थ्रू इट, ये इसका कैप रहता है नीचे। बट जैसे ये नीचे से पानी इसको मारेगा, ये बॉल यहाँ जाके रुक जाएगा, पानी को अंदर नहीं जाने देगा फ्रॉम द डेक साइड। ड्रेन चैनल, हैच कोमिंग और क्लीनिंग बॉटम हाफ, आप इसको खोल भी सकते हो। ये परफोरेटेड प्लेट है, यहाँ से पानी ड्रेन होता रहेगा, बॉल कहीं पे भी बैठे तो इसको पानी को रोकेगा नहीं, बट वो कचरा आके यहाँ बैठ जाएगा, फिर ये चोक हो जाएगा, फिर पानी नहीं आएगा, फिर ये चैनल भर जाएगा और यहाँ से पानी अंदर हैच में जाएगा। ये आपकी कंप्रेशन बार दिखा रहा है, ये आपकी अंदर वाली बार है।
दैट बल्ब प्लेट जो लगी हुई। ऐसा चीज वो सर, ये चीज आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्रेन वॉल्स हैं इनका पर्पस क्या है और इसको मैंने हाउ डू वी मेंटेन दिस, इसका आइडिया क्या है, एंड रूटीन में इसको चेक करते रहना कि यार कचरा तो नहीं फंसा, पानी तो नहीं भर गया इसके, स्पेशली इफ देयर इज अ हैवी रेन और स्प्रे और दिस थिंग, तब यू कैन सेंड एनीबॉडी कि यार इसको ड्रेन वॉल्स को देख ले। लॉट ऑफ टाइम वो इसका आधा या नीचे वाला कवर निकाल के ही फेंक देंगे या स्टोर में रख देंगे कि यार पानी अंदर आता है तो जाने दीजिए। तो ये चीज़ जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रबर पैकिंग रही। नाउ यू सी दिस रबर पैकिंग, ये इसके अंदर परमानेंटली ग्रूविंग होगी, कंप्रेशन खत्म। अब इसके अंदर डेफिनेटली आपका पानी जाने का चांसेस, बिकॉज हैच कवर बैठेगा ही नहीं, वो तो बैठ गया बट कंप्रेशन दे ही नहीं रही। सो वेरी कॉमन किसी भी टाइप का हैच कवर है, सो नॉर्मली वी ट्राई टू रिन्यू फुल लेंथ। कई बार ये रबर पैकिंग कट भी जाती है, थोड़ी सी डैमेज होगी, तब भी है कि मिनिमम आपने 1 मीटर तक, 1 मीटर से कम नहीं रिन्यू करनी है, तो एटलीस्ट 1 मीटर, चाहे वो थोड़ी सी एक ही जगह से कटी है, तब भी मिनिमम दे रिकमेंड, मैकग्रेगर रिकमेंड्स मिनिमम 1 मीटर। Hatch covers provide a primary structural and weather-tight barrier to prevent water ingress. Rigorous inspection, regular maintenance, prompt repair of damaged covers, securing supports are essential to maintain the fitness for the purpose, and in particular to maintain sufficient strength to resist green seas, means your sea waves landing on the hatches in extreme weather. Bad weather होगा, spray तो ठीक है, sometimes the full wave comes from one side to other side. And to maintain a barrier against the ingress of water during normal seagoing weather conditions. The failure to maintain hatch covers correctly can lead to physical loss of cover, extreme weather and hold flooding and possible foundering. Minor leakage, of course, cargo damage and damage to the ship's internal structure. Now, it is not only कि पानी अंदर जा रहा है, it is जैसे मैंने आपको कहा, it is straining your bulkheads, and after all सॉल्ट वाटर जाएगा तो डेफिनेटली आपके कार्गो स्पेस, चाहे वो टैंक टॉप है चाहे बल्कहेड्स हैं, उनको भी कोरोजन तो करेगा। तो यही चीज़ है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिक्लाइन कैन लीड टू स्ट्रक्चरल कोलैप्स एंड टोटल लॉस। जैसे जैसे प्लेटिंग जो है कोरोडेड होके थिन होती जाएगी तो नुकसान तो होगा ही। सो देयर प्रोसीजर्स व्हिच विल हेल्प टू कीप योर शिप्स हैच कवर्स इन गुड कंडीशन। अब इनको गुड कंडीशन में इतना आपने समझ लिया कि ऐसे हैच कवर रेस्ट कहाँ करता है, हैच कवर की जो वेदर टाइटनेस है, हाउ इट इज अचीव थ्रू द रबर पैकिंग, अंदर रबर रिटेनिंग चैनल है, रबर पैकिंग उसके ऊपर है, उसकी क्या कंडीशन है, एंड देन सिक्योरिंग बाय मींस ऑफ द क्लीट्स। अगर इतनी चीज़ों पर आपने ध्यान दे दिया, डीरस्टिंग पेंटिंग तो हम करते ही रहते हैं, दैट इज अ मेंटेनेंस ऑफ द स्टील। मोस्ट ऑफ द टाइम कंटेनर शिप्स में ये भी प्रॉब्लम आती है कि यार हैच कवर मिलते ही नहीं, ऑल द टाइम देयर इज कार्गो। अब लॉक कैरियर में भी देखा हमने, टिम्बर में भी यही है कि जब डेक कार्गो क्या गो है। सर ये अगर कंप्रेशन बार में अनइवन आ जाता है, कभी कभी ऐसा कुछ हो गया तो, हाँ, कंप्रेसर बार अनइवन केस हो गया तो उस केस में क्या करेंगे फिर? अच्छा, फिर रिन्यूअल, कंप्रेशन बार क्रॉप एंड रिन्यू। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत है, अगर थोड़ी बहुत अगर मैं इसको बिल्टअप कर सकता हूँ तब तो ठीक है, बट अगर वो बेंड होगी, वेरी कॉमन बल्क कैरियर में कई बार होता है, ग्रैब जो है वो लग गया, कार्गो है, कोई भी कार्गो है, बाई चांस अगर वो कॉमिंग पे रेस्ट करता है या डिस्चार्ज करते हुए कहीं उसने उसको टच किया, स्टील प्लेट्स हैं, स्टील पाइप कुछ भी है, वो लगी, उसको बेंड कर देगी। तो हमारे पास सोल्यूशन वही आ जाएगा कि उसको अगेन क्रॉप एंड रिन्यू, या थोड़ी बहुत अगर बाई चांस कहीं कटी है तब उसको ठीक है बिल्टअप भी कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग वी कैन डू ऑन द शिप, दीज welders they are equipped to do SS stainless steel welding, but it's again a specialized job. बट वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यस कि उसकी चेकिंग वही हम देखेंगे जब हम टेस्टिंग में आएंगे, इसके वेदर टाइटनेस के जो मेथड्स है उसको जब हम देखेंगे, सो यू विल सी दिस
अब आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया, चाहे आपने हैच कवर नहीं भी देखे कि यार ये पैकिंग जो है कैसी दिखती है, ये आपका जो अंदर का जो डबल ड्रेन चैनल है उसका क्या पर्पस है कि उसके अंदर पानी थोड़ा बहुत जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से अगर आएगा पूरी सीवे मारेगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत पानी अंदर सीप कर जाए। सीप करेगा तो अंदर उसने इसीलिए चैनल बनाया एंड वो फिर ड्रेन हो जाएगा। अब इसके लिए फॉलोइंग एडवाइस दे गिव कि यस ऑलवेज कैरी आउट द रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ कवर्स, आइडेंटिफाई जनरल लेवल्स ऑफ कोरोजन, localized corrosion at welding connections. Now this is again your steel. First of all is the maintenance of the steel. तो सबसे बिगेस्ट थिंग इज द स्टील की मेंटेनेंस की, यार उसकी थिकनेस कम ना हो, उसमें कोई हैवी हिटिंग ना हो, हैवी कोरोजन ना हो जिससे उसमें होल हो गया। अगर हैच कवर में होल कहना बहुत आपको लगता है बट इट इज पॉसिबल। अब मेरे को चांस ही नहीं मिल रहा अगर हैच कवर को डी रस्ट या चिपिंग पेंटिंग करने का, तो एक स्टेज तो आएगी कि कोरोजन बढ़ती जाएगी एंड फाइनली इट विल कीप ईटिंग अप द मेटल। क्रैक्स इन द जॉइंट्स वेल्ड मेटल। अब एक प्लेट तो है नहीं, दुनिया भर की उसके अंदर वेल्डिंग है, कहीं ना कहीं से क्रैक भी हो सकता है। परमानेंट डिस्टॉर्शन ऑफ प्लेटिंग एंड स्टिफनेस। हैच कवर बेंडिंग इज वेरी कॉमन। क्यों? हम उसके ऊपर कार्गो लोड कर रहे हैं, एक्सेसिव वेट कहीं पे भी आया आपकी प्लेटिंग बेंड होगी, आपको दिखेगी नहीं, वो पता लगेगा कि पानी जाना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी भी मिलीमीटर में भी क्लियरेंस आई तो गिव्स अ स्पेस फॉर वाटर टू गो इन। ये क्वेश्चन आपके भी है कि यस इन केस इफ देयर इज अ डिस्टॉर्शन, प्लेटिंग आपकी बेंडिंग हो जाती है, तब आप क्या करोगे शिप पे? यू कैन नॉट डू द रिपेयर्स। हैच कवर को आपने वेल्डर्स ने उसको टच किया तो प्लेट और डिस्टॉर्ट हो जाएगी और डिफॉर्म हो जाएगी। तो इसकी जो रिपेयर्स हैं हैच कवर्स की, बाई चांस अगर ये हैच कवर्स आपके बेंड हो गए हैं, वो दिखेंगे नहीं, दिखने से नहीं है बट यस क्लोज एग्जामिनेशन से आपको दिख जाएगा। एंड ये क्वेश्चन है कि यस अगर आपकी प्लेटिंग एट सी यू फाइंड इट इज डिफॉर्म व्हाट यू डू। सो अगर तो हमें टेम्परेरी अरेंजमेंट है, चाहे रेमनिक टेप लगाइए, चाहे टेम्परेरी पानी को कैसे भी रोकें सो दैट द वाटर कैन नॉट गो। इट्स नॉट दैट कि बेंडिंग हो जाएगी कोई 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का गैप, नो इट विल बी इन मिलीमीटर्स। एंड इसकी रिपेयर के लिए यू हैव टू कॉल अ क्लास सर्वेयर, कैरी आउट द रिपेयर्स एज सून एज पॉसिबल एज पर द क्लास सर्वेयर। बिकॉज समटाइम इसका जो स्टील है वो डिफरेंट टाइप, कौन से टाइप का स्टील है, एंड इसकी जो वेल्डिंग या रिपेयरिंग करते हैं देयर आर स्पेशलाइज्ड वेल्डर्स हु आर क्लास अप्रूव्ड वेल्डर्स। एंड वेरी सिंपल, अब डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, अदरवाइज कुछ भी है आपने नोटिस में लाया दे हैव टू इन्फॉर्म द क्लास, दोस गाइस सर्वेयर्स कम एंड दे सजेस्ट कि भाई इसकी क्या क्या करना है। नॉर्मली ये ड्राई डॉक की जॉब आ जाती है। हैच कवर्स आर टेकन अशोर, दे आर पुट इन अ जिग, फिर वहां पे उसको रख के देन इसकी जो है रिपेयर की जाती है। एक बार बताया ना कि रिपेयर हुई फिर वो अलाइनमेंट चली जाती है जो ओरिजिनल में होती है। And indications of excessive corrosion, holes or local buckling of the top plate, cracks in main structural joints, areas of significant indentation other than the localized mechanical damage. So these कीजिए मेरे हिसाब से तो yes temporary हम उसको करेंगे, we cannot repair that at sea, it has to be again as per the class recommendation and जैसा वो recommend करेंगे उस तरह की repair हम carry out करेंगे. Be particularly vigilant after heavy weather. Rectify any steel to steel fault before renewal of rubber packing. हैवी वेदर के बाद नॉर्मल इंस्पेक्शन तो हम करते ही, यार कहीं होल्ड में पानी तो नहीं गया। Renewal will not be effective if steel to steel contact points are defective and expensive rubber packing will be renewed only after few months. So सिंपल है कि आपका what he is trying to say कि जब मैंने रबर पैकिंग रिन्यू करनी है तो आपका जो रबर रिटेनिंग चैनल है जिसके अंदर रबर फिट होती है उसकी हम चिपिंग पेंटिंग कर देते हैं, दैट इज द टाइम। पूरी रबर पैकिंग निकाली करके उसको 2 कोट प्राइमर लगा के देन यू फिक्स द रबर पैकिंग, नथिंग हैपेंस। अगर पैनल जो है जो रबर रिटेनिंग चैनल है उसकी जो होल्डिंग प्लेट्स है वही सड़ गई तो रबर को कैसे होल्ड करेगा? So replace missing or damaged hatch gaskets or rubber packing immediately. Minimum length 1 meter. And keep hatch combing tops clean and double drainage channels free of obstructions. So इतना अगर आपने काम कर लिया, अगेन
जब आप डिस्चार्ज पोर्ट पे आते हो, व्हेन यू आर डिस्चार्जिंग द कार्गो ऑन कंप्लीशन ऑफ डिस्चार्ज, अब हैच कवर ये तो है नहीं कि डिस्चार्जिंग दिन में ही खत्म होगी। एवरी क्रूज लॉट ऑफ टाइम बल्क कैरियर्स में कॉमन है, रात को सारा 1 बजे 12 बजे हैच कवर अब इन होल्ड, डिस्चार्जिंग कंप्लीट हुई, अब हैच कवर बंद करने। एंड आजकल 2.5 तो आदमी है हमारे पास शिप में, अब रात को आपको क्रू को उठाना है। सो ओनली थिंग आपकी एडवाइस टू द ड्यूटी ऑफिसर कि भैया ये काम जो है कर लेना, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि बिफोर क्लोजिंग द हैच कवर जरा इसकी कंप्रेस्ड एयर से अंदर का जो चैनल है, पूरी कॉमिंग प्लेट जो है उसको थोड़ा कंप्रेस्ड एयर मार देना। इतना काम हो गया, इट सॉल्व्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यस व्हाइल क्लोजिंग, बिफोर क्लोजिंग चैनल वगैरह क्लीन होने चाहिए, फिर नहीं पानी अंदर जाएगा। कीप द क्लीट्स वेजेस इन सर्विसेबल कंडीशन एंड करेक्टली एडजस्टेड। सो ये जो क्लीट्स की जो मेंटेनेंस है, इट इज़ अ बिग जॉब। बाय द टाइम यू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 हैच एंड कम टू नंबर 7, आपके नंबर 1 वापस जो है वो रस्ट होना शुरू हो जाएगा। बट एक बार इट टेक्स टाइम, इट टेक्स गुड 6 मंथ्स अगर ये क्लीट्स अच्छी मेंटेन नहीं है। बट एक बार आपकी आगे से पीछे होगी, फिर नहीं है, फिर इसको खाली एंड इट इज जस्ट अ ग्रीसिंग ऑफ जस्ट दैट वन नट डाउन बिलो, दैट्स ऑल। और कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे से ही सीजिंग होती है इसकी, नट खुलेगा ही नहीं, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर वो कैसे रबर पैकिंग को कैसे चेंज करें, तो रबर वॉशर जो है थिक रबर वॉशर होती है। कीप दिस हॉलिंग वायर्स चेन्स, अगर उस टाइप के हैच कवर हैं, फोल्डिंग टाइप में है तो उनकी चेन्स वायर्स है उनको भी, उनकी लेंथ को ठीक रखिए। अटैच लॉकिंग पिंस, कीप व्हील्स क्लीट्स हिंज पिंस प्रॉपर्ली ग्लीस्ड। क्या गो अहेड बच्चे। आजकल सर ये आजकल सर ये हाइड्रोलिक क्लीट्स से चल रही ना, हाइड्रोलिक क्लीट्स, ये हॉरिजॉन्टल मतलब ऑपरेट होती है हॉरिजॉन्टली। क्या वो भी चलती हैं, बट अगेन मैंने बताया हाइड्रोलिक क्लीटिंग का यही है कि एक क्लीट में ऑब्स्ट्रक्शन आई तो आगे वाली कोई भी नहीं लगेगी। सिस्टम तो ये था, हाँ, वो लीक कर जाती है वो। यस काफ़ी पुराना था, बिकॉज हाइड्रोलिक क्या है कि उसका सिलेंडर है बेसिक, उसमें हाँ जी। एक पूरी की पूरी क्लीट जो है एक रॉड के साथ अटैच है, वो हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर जितना हाइड्रोलिक्स आपके पास आएगा लाइफ इजी होती है, बट उतनी ही वो प्रॉब्लम लेके आएगा, लीकेज। आज तो पोल्यूशन सबसे बड़ी चीज़, हाइड्रोलिक ऑयल डेक पे लीक किया, शाही ऊपर से, एवरीबडी इज आफ्टर मेकिंग मनी। हाँ जी, हमारी हार्बर का पानी गंदा कर दिया, तेल डाल दिया, ये कर दिया, चाहे उसमें गया जैसे कहते हैं कि 200 mm भी ना गया हो, हाफ a लीटर ऑयल भी नहीं गया, दे मेक अ बिग ह्यू एंड क्राई। सो इसके लिए जितना, इफ यू आस्क मी, वी आर गोइंग बैक टू सेम थिंग, यार निकालो, हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए ही नहीं। जहाँ पे हाइड्रोलिक होगा लीक होगा ही 100%, मैं बता रहा हूँ। चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, आपकी प्रोविजन क्रेन जहाँ पे भी हाइड्रोलिक सिलेंडर आया, एंड ये हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लीक क्यों करते हैं, एनी आइडिया? ये जो पिस्टन आपका सिलेंडर के अंदर मूव करेगा, हाँ जी सर प्लीज रिपीट। ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं, चाहे वो क्रेन्स के लिए होते हैं, कई बार क्रेन की जो अप एंड डाउन है, प्रोविजन क्रेन में वेरी कॉमन है, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द जिब इज हाइड्रोलिकली विद द सिलेंडर। हाइड्रोलिक दैट पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर मूव करेगा, उससे वो करते हैं। या जैसे आपने अगर क्लीन के लिए या खोलने बंद करने के लिए हर जगह हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आते हैं, आई मीन हाइड्रोलिक पिस्टन एंड दैट लाइनर इज देयर, जिसके अंदर वो पिस्टन मूव करता है। एंड ये पिस्टन जो है हमेशा क्रोम प्लेटेड होता है, चमकता होता है वाइट, इजंट इट? यस सर। थोड़ा टाइम के बाद ये जो क्रोम प्लेटिंग है कहीं ना कहीं से डैमेज होगी, एंड फिर उसके ऊपर छोटे से 3-4 रस्ट के स्पॉट आएंगे। अब ये जो रस्टेड स्पॉट हैं पिस्टन के ऊपर, ये जब आपके अपने सिलेंडर के इन एंड आउट मूवमेंट करेंगे, वहाँ पे जो रबर गैस्केट लगी है, ये रस्ट के जो स्पॉट्स हैं उस रबर गैस्केट को काट देंगे, जो बेसिकली आपकी ऑयल को सिलेंडर से बाहर नहीं आने देती। दैट रबर गैस्केट जो, वो एक बार थोड़ी सी भी कटी, वहाँ से ये ऑयल लीक होना शुरू हो जाएगा, एंड इसकी रिपेयर आप कुछ नहीं कर सकते।
चाहे प्रोविजन क्रेन थी, चाहे हैच कवर थे, एंड वो लीकेज शुरू हुई एक बार, तो इसका ओनली सोल्यूशन है कि यू कीप दिस पिस्टन इन गुड कंडीशन। उसके ऊपर रस्ट ना आए, चाहे उसके ऊपर आप ग्रीस लगा के रखिए या कुछ भी करके रखिए। इसकी क्रोम प्लेटिंग नहीं टूटनी चाहिए। तो प्लेटिंग होती है स्टेनलेस स्टील का, तो होता नहीं, स्टील का है, उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग की होती है। यस सर। एंड उसको आधा टाइम तो किसी को समझ ही नहीं आता ये हुआ क्यों हुआ। क्या जी सिलेंडर इज लीकिंग, सिलेंडर नहीं लीक करता, रबर गैस्केट जो कट जाती है, एंड उसको चेंज करने के लिए द एंटायर, जिसे कहते हैं सिलेंडर पिस्टन, सारा का सारा डिसमेंटल करना पड़ेगा, वर्कशॉप भेजना पड़ेगा, उसको खोलेंगे, इसकी दोबारा से क्रोम प्लेटिंग होगी, उसको निकालेंगे, फिर ही रबर गैस्केट उसकी चेंज होगी। कोई नहीं करता, डिब्बे रखते जाएंगे, बॉटल्स नीचे टांग देंगे, हाँ बस। टफ टाइम आई हैड जब से पोल्यूशन जो थी बिकेम स्ट्रिक्ट। क्रेन चली मीन्स hydraulic oil leakage. Again, test the hydraulic oil regularly for contamination, deterioration. Keep the system oil tight, no leakages. Ensure oil tank hydraulic system is kept filled to operating level, and clean up oil spills if the leak cannot be stopped immediately. Construct a safe wall to contain the oil. वही है, construct a safe wall means very common. डिब्बा टांग देते हैं, बोसन भी आएगा, वो भी पेंट का डिब्बा कुछ ना कुछ उसके नीचे रख देगा। दैट इज ओनली वे। सो हाइड्रोलिक्स हमें आराम भी देते हैं, बट दे गिव मोर पेन। ट्विन डेक कवर्स, ऑफ कोर्स you will not have many ships where you have these twin deck covers and all that. Temporary repairs, if these were permanent, never treat the temporary repairs as they are permanent. आपने कुछ temporary की है तो temporary समझिए, and first opportunity पे उसको permanent repair कराइए। Strength of the cover, ultimately the ship will depend on the quality of repairs. तो ये एज अ चीफ ऑफिसर आप कितना एफर्ट लेते हो, इट इज नॉट ओनली यू, आपको सपोर्ट कितनी देते, राइट फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, हाउ मच सपोर्ट ही गिव्स यू, हाउ ही कैरीज आउट द रिपेयर। तो रिपेयर तो उनके हाथ में, चाहे शिप इज इन ड्राई डॉक, कौन सी ड्राई डॉक पे जहाज लेके गए, चाइना में लेके गए, वेदर द क्वालिटी ऑफ जॉब इज देयर और नॉट, रिपेयर तो हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप मेरे को पूछिए, आई हैव डन इनफ ड्राई डॉकिंग्स एट एवरी लेवल, इवन एज अ सुपरिटेंडेंट। बजटिंग, कॉस्टिंग, हमेशा सस्ती ड्राई डॉक, सस्ती होगी तो फिर रिपेयर भी सस्ती ही मिलेगी आपको, उसमें आप नहीं कुछ कर सकते। तो इसके लिए इट इज़ अ बिग साइकिल जिसे कहते हैं, इट्स अ बिग चेन। सो इट्स नॉट ओनली यू हु कैन डू थिंग्स, आपको भी पूरी सपोर्ट चाहिए फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम ऑल्सो, देन ओनली यू कैन कीप दिस थिंग्स इन गुड ऑर्डर। एंड ये आपके ऊपर है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो, चाहे हाथ जोड़ के, चाहे भीख मांग के कि सर ये चीज़ जरूरी है, इसको कराइए, ये करा दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इग्नोर सीरियस corrosion, cracking, distortion in covers and supports. These are the signs of weakness and potentially hazard. Never allow grooves to form in the coaming top, especially where the hatch side or the panel rests. So again वो भी important, hatch coaming maintenance, आगे maintenance। When the hatch cover is closed, apply petroleum-based grease or paint on the rubber packing. Never. These are all never things कि rubber packing के ऊपर कुछ नहीं लगाना। कई बार पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग करते हो, ठीक है, वो पेंट स्प्रे पेंटिंग कर रहे हो, तब उसके ऊपर पतली सी ग्रीस लगा के पेंट कीजिए, उससे उसके बाद कपड़े से पहुंच दीजिए, पेंट पैकिंग को पकड़ेगा नहीं। वेरी कॉमन। वाटर टाइट डोर्स आपने देखे होंगे, somebody steps from the gangway, सबसे पहला वाटर टाइट डोर देखता है, वेरी नाइसली वाइट पेंट किया हुआ, पूरा का पूरा जो रबर पैकिंग है उसके ऊपर भी वो पेंट दिख रहा है, वहीं से सीमेंटशिप का अंदाजा लगा लेते हैं। ऑफ कोर्स नाउअडेज यू हैव लॉट ऑफ टेप्स, लॉट ऑफ पीपल, आजकल हम लोग काम कम करने को टेप लगा देते, टेप लगा के फिर पेंट करते हैं। बेस्ट है पतली ये ग्रीस, जस्ट विद द हैंड ओनली, एक ब्रश के साथ थोड़ा पतला लेयर ऑफ ग्रीस लगा दीजिए रबर पैकिंग के ऊपर, उसके बाद पेंट होने दीजिए। सर उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा ना फिर ग्रीस लगाएंगे तो? आजकल Yes. का वो अलग टाइम काम है, कैसे भी टाइम तो निकालना ही है।
नहीं बच्चे, दैट इज, देखिए अगर आप करके देखिए कभी, इवन अगर आपने घर में पेंटिंग, आप ही घर में पेंटिंग कराते होंगे, पॉलिशिंग कराते होंगे, खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, उस पर जब उसमें पॉलिश करनी हो, कांच भी, सारा कांच के ऊपर भी पॉलिश आ जाएगी या पेंट आ जाएगा। किनारा में तो चलो ठीक है, छोटा काम है, वो हमेशा उन्होंने क्राफ्ट टेप रखी हुई है, मास्किंग टेप जिसे कहते हैं। पर शिप में तो हमने जो यस देख, सर। शिप का तो बेस्ट है, बिकॉज उससे क्या इंप्रेशन किसका जाता है, दे आर नॉट सीइंग द क्रू, दे से यार चीवॉस, एवरीथिंग इज चीवॉस। किसी ने काम अच्छा किया तब भी स्टार आपके लगने हैं, किसी ने काम खराब किया तब भी स्टार आपके निकलने। तो थोड़ा सा आपको, जब आप जा रहे हो ना, ऑफ कोर्स यू विल लर्न, आई एम वेरी श्योर, जैसे जैसे टाइम आपको, आप पास करोगे उस चेयर पे, यू विल लर्न दीज थिंग्स। बट उससे पहले ही आप सीख लीजिए कि यस, बॉसन को काम दिया यार, वाटर टाइट डोर्स, दुनिया भर के वाटर टाइट डोर्स होते हैं, कि डियर जब इसको पेंटिंग करेगा तो ये जो रबर पैकिंग है, इसके ऊपर थोड़ी सी पतली ग्रीस लगा देना, उसके बाद उसको मारने दीजिए ब्रश, जिधर मर्जी मारता है ब्रश, बाद में कपड़ा लेके उसको ग्रीस को निकालिए, पेंट चिपकेगा ही नहीं रबर पैकिंग पे, एंड रबर पैकिंग एब्सोल्युटली ब्लैक शाइनिंग दिखेगी आप, इंस्टेड ऑफ बाद में उसको ब्लेड से या स्क्रैपर से या किसी से घिसते रहो। चलो एनीवे, नेवर रिमूव द ball from the non-return wall, use anything, never use anything other than the recommended hydraulic oil, and leave cleats unfastened when proceeding to sea. So cleating of the hatch covers, at least I know time constraint, मैं आपको बड़ा practically बता रहा हूँ कि yes, time constraint is there. Before you move out of the jetty, at least corner cleats. They're very important. You never know how the weather behaves. Never attempt to open or close any hatch that has a load on cargo on it. Never open the hatch covers at sea unless absolutely essential. Never leave open hatch covers unattended when at sea. हैच क्लीनिंग कॉमन है, बल्क कैरियर जिन्होंने किए, हैच कवर में थोड़ा बहुत खोल के रखने पड़ते तभी हैच क्लीनिंग होती। तो ये भी क्रिटिकल ऑपरेशन है, एक्सीडेंट्स हैव टेकन प्लेस, क्योंकि आजकल तो और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि वी आर मेंटली टू मच ऑक्यूपाइड, दुनिया भर का काम हमारे माइंड में चल रहा होता है, हाथ हमने कहीं रखा हुआ, ऊपर से रोलर, हैच कवर का रोलर ही निकल गया, सोच हम कहीं और रहे, खड़े हम कहीं और हैं। मेक योर सेल्फ ऑल्सो डू दैट एंड मेक द अदर्स ऑल्सो, कि नहीं भाई जब काम करना है, स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज, मोबाइल सब बंद। Never tighten down the cleats so that the hatch cover is unable to move on the combing top. This is what I was telling you. कि उनको इतना भी टाइट नहीं कर देना आपने कि हैच कवर जो है बिल्कुल स्लाइड ही ना कर सके, they actually slide due to the flexing of the ship. चलो यहीं तक रखते हैं, so we will see tomorrow. So now at least you have सर some. ये जो, हाँ जी, सर जो हैच कवर की जो पैकिंग है, रबर पैकिंग, इसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए चेंज करने के लिए? कि डैमेज हो गया चेंज कर दें, बट कितना इलास्टिसिटी जाना चाहिए, कभी तक चेंज करना चाहिए? अच्छा, इट इज अगेन कि एक तो उसमें जब परमानेंट ग्रूविंग होगी, कि आप देख रहे हो कि आप जैसे ही हैच कवर को उठाते हो या खोलते हो, देयर आर 2-3 थिंग्स, अगर तो आपके हैच कवर्स हाइड्रोलिक हैं, शिप पे ही हैं, फोल्डिंग टाइप हैं, इवन यू कैन वॉच दैट रबर पैकिंग, कि जैसे आपने हैच कवर खोला तो पैकिंग जो है प्लेन हो जानी चाहिए, बट उसके अंदर जो ग्रूव है वो ग्रूव वैसे ही बना है, वो फ्लैटन हो ही नहीं रही, दैट मीन्स उसका कंप्रेशन गया, रबर है, इजंट इट? बट सर आफ्टर सम टाइम तो ग्रूव तो आना ही आना है, कुछ दिन बाद नहीं नो रहेगी तभी नहीं आएगी, नो, क्योंकि इफ लॉन्गर टाइम के लिए अगर सेट कर रहा है उस पे फाइनल पूरा हैच वेट कवर। नहीं आता। हाँ, यही चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, इट इज नॉट द फुल वेट ऑफ द हैच कवर एंड फुल वेट ऑफ द 100 कंटेनर्स कम्स ऑन द रबर पैकिंग, मैक्सिमम वेट इज टेकन बाय द रेस्टिंग पैड्स। रेस्टिंग पैड पे आता है, बट सर आफ्टर तो लॉन्ग थोड़ा टाइम सी अगर आपको कंटिन्यूअसली compress कंप्रेशन होगी। बार पे है वो, यस, तो थोड़ी सी कंप्रेस तो होगी, थोड़ा वेट ग्रूव उसमें ग्रूव आना तो चाहिए। आना मस्ट है सर, थोड़ा बहुत। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इट विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट लीस्ट 1-2 ईयर्स। अगर उसके ऊपर अगर आपके रेस्टिंग पैड ठीक हैं, इक्वल हाइट के हैं, सब बराबर हैं, तो थोड़ा सा ही कंप्रेस होती है, ये आपकी रबर, ये आपकी कंप्रेशन बार है, इस पर रबर पैकिंग थोड़ी सी कंप्रेस होगी। अब जब हैच खोलोगे वापस उसकी कंप्रेशन जो है वापस आ जाएगी, बट अगर आपको दिखती है एनीवे, अगर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पैकिंग ऑल्सो। अब वही है कि सस्ता माल लगाया तो हो सकता है 6 महीने में वापस कंप्रेस हो जाए। अगर आपको लगता है कि यस वो ऐसा हुआ है,
कंप्रेस होगी या परमानेंट ग्रूविंग है, रिन्यू। बट रिन्यूअल से पहले, बिफोर यू थिंक ऑफ रिन्यूइंग स्टॉक, आपके पास स्पेयर भी तो होना चाहिए। अब स्पेयर भी आपने ही मंगाना है, उसके लिए ग्लू भी मंगानी है, वो पैकिंग का साइज, वो सारी। तो इसके लिए द मोमेंट यू ज्वाइन द शिप, आपके पास कितना काम आ गया था। फर्स्ट यू हैव टू सी द स्टॉक, कि यार मेरे शिप स्टोर्स में सर ऐसा कुछ क्राइटेरिया भी होना चाहिए? ऐसा कौन सा क्राइटेरिया मींस टू रिमूव दिस रबर पैकिंग ऑफ द हैच कवर्स? इट इज ओनली विजुअल इंस्पेक्शन, या फिर आपकी ये आपकी आ जाएगी वेदर टाइट, जब हम टेस्ट करेंगे। बल्क कैरियर में कॉमन है टेस्टिंग। तो चौक टेस्ट करते हैं ना, चौक टेस्ट, चौक Yes. लगा देते हैं वाटर टाइट डोर के ऊपर। या वी विल कम टू दैट। चौक टेस्ट बेसिकली आपको दिखाता है कि रबर पैकिंग, इट्स नॉट अ वेदर, इट्स नॉट अ वाटर टाइट टेस्ट। वो खाली ये बताता है कि आपकी रबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, दैट्स ऑल। विल कम टू दैट आल्सो, गुड, एटलीस्ट यू आर अवेयर। तो ये सारे मेथड्स हैं उसके कि वेदर टाइटनेस को चेक करने के। अब अगर आपने टेस्ट किया है, चाहे होज टेस्ट किया, चाहे अल्ट्रासोनिक से किया है, इफ द वाटर इज गोइंग इन द होल्ड, दैट मीन मेरी पैकिंग गई। मैं हैच कवर को खोल के देखता हूँ जहाँ से पानी जा रहा है, दैट विल गिव यू अ गुड इंडिकेशन। विजुअली मेरे को दिख रहा है कि यार, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए, अगर पैकिंग की कंडीशन ही ऐसी है, ये देखो, अब ये देखिए ये प्लेन है, अब ये देखिए परमानेंट ग्रूविंग लेगी, ये बनाएगी नहीं, वाटर टाइटनेस देगी नहीं, आप खत्म ये पैकिंग। तो गई बिल्कुल करेक्ट, यस। पैकिंग जो है, जैसे ही आप हैच कर उठाओ, वापस ऐसी प्लेन हो जानी चाहिए, वापस आ जानी चाहिए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली दिस परमानेंट कंप्रेशन विल टेक प्लेस, दैट इज द टाइम यू हैव टू रिन्यू। चलो, डोंट वरी। सो कल कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास मेथड्स हैं सब टेस्ट करने के, चेक करने के। एंड अगेन नाउ इट इज़ इजी टू टेक अ डिसीजन कि हाँ भी रिन्यू करनी है, बट रिन्यू करने के लिए हमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। क्या, सबसे पहले तो मेरे स्टॉक, मेरे पास स्पेयर होनी चाहिए, इसका जो सोल्यूशन है वो होना चाहिए। एंड देन व्हाट टाइम, अगर तो आपके हैच कवर्स, अगेन अभी हैच कवर्स आपने, मैंने इसीलिए आपको वेरियस हैच कवर्स दिखाए हैं। फोल्डिंग टाइप है, एट सी खाली है, कार्गो नहीं है, तब तो मैं उसको खोल के रिन्यू कर सकता हूँ, वेरी इजी। अब लिफ्ट ऑन टाइप है, तब तो मैं हैच कवर को उठा ही नहीं सकता यार, वो तो किनारा में ही उठेंगे, या शिप हैज टू गो फॉर ले अप। या फिर कंटेनर शिप्स में भी है कि यस, इफ इट्स अ बिग कंपनी, आप अगर थोड़ा सा उनसे टाइम ले सकते हो कि हैच कवर्स को ऐसे अरेंज कराइए, या फिर लोकल वर्कशॉप, दे कैन अरेंज। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड, एंड आपको सुपरिटेंडेंट को बताना पड़ेगा कि सर ये चीज़ है, इसको ऐसे ऐसे कराइए। फिर उनका काम है हाउ टू अरेंज विद द कंपनी, टर्मिनल, वर्कशॉप्स, किस टाइम पे कराएं, क्योंकि शिप्स आर टुडे रनिंग, जिसे कहते हैं बैक टू बैक। तो ये एक बिग जॉब आ जाती है। तो इसके लिए ये होमवर्क सारा हमें करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हैच कवर्स की, पहले तो उसकी मार्किंग आ गई भाई, ये पैकिंग मैंने चेंज करनी है, फिर मेरे को उतने स्पेयर रखें। अदरवाइज नॉर्मली ये जॉब हमारी फिर ड्राई डॉक पे आ जाती है। ऐसा नहीं होगा तो फिर ये ड्राई डॉक की लिस्ट में आप इसको एडॉप्ट कर दीजिए कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी है ड्राई डॉक में, वहाँ पे आपके पास एम्पल टाइम है बिकॉज शिप इज आउट ऑफ ऑपरेशन। बट उसके लिए भी आपकी तैयारी है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस कि ड्राई डॉक के लिए भी आपने क्या क्या तैयारी करनी। स्पेयर्स, सर। हाँ जी सर जब ये हैच कवर अपन जब यहाँ रखते हैं ना हैच कोमिंग के ऊपर, तो उसका वेट है ना रेस्टिंग पेड उठा लेते हैं। लेकिन सर जब अपन इसको उठा के जब जेटी पे रखते हैं ना ये कंटेनर शिप्स पे, तब वहां तो कोई रेस्टिंग पेड होता नहीं, तो सर उस टाइम पे तो वेट नीचे की लेयर भी आता होगा। नहीं, उसके बीच में नीचे में एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने बनाया होता है कि जो आपका जो हैच कवर है वो पूरा जेटी पे रबर पैकिंग उसके ऊपर वहाँ नहीं रेस्ट करेगा, वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, नीचे उसके रहते हैं थोड़े से, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल, या अरेंजमेंट होता है जिससे वो हैच कवर जो है अंडरनीथ होता है ना, तो सर हाँ अंडर नहीं, तो थोड़ा सा स्टील का उन्होंने बनाया होता है कि वो उसी के ऊपर रेस्ट करेगा। आप इवन यू कैन वेरी इजीली गो एंड सी दैट, आप थोड़ा सा अपना सिर तक डाल सकते हो उसके नीचे, इतना ऊंचा रहता है।
वो स्टील की परमानेंट फिटिंग होती है ऐसे, आई डोंट नो द वर्ड, नॉट द रेस्टिंग समथिंग उसे कहते हैं, सब पैड टाइप थिंग होती है जिसके ऊपर वो रेस्ट करता है जब वो जेटी पे रखते हैं। इतना बेवकूफ़ वो भी नहीं होंगे कि पूरी की पूरी, अदरवाइज जो स्कर्ट है जिसे कहते हैं फ्लैट प्लेट होती है ना ये, हाँ हाँ सर, स्कर्ट उसकी ये है। इसके ऊपर मैं रखूंगा तो ये डैमेज हो जाएगी। हम्म। दिस प्लेट इज नोन एज द स्कर्ट। हैच कवर की इसे कहते हैं स्कर्टिंग, नॉट स्कर्टिंग, इज कॉल्ड द स्कर्ट ऑफ द हैच कवर। ये फ्लैट प्लेट जो है वर्टिकल प्लेट है, इसके ऊपर नहीं रेस्ट करता, इसके अंदर में रहता है जिसके ऊपर ही रेस्ट करेगा। हैच कवर के अंदर बना होता है जिसपे ये हैच कवर रेस्ट करेगा। ये जेटी से एटलीस्ट 6-8 इंचेस ऊपर रहता है। फिर दूसरा वाला आएगा, ये उसके ऊपर रेस्ट करेगा, उसमें भी गैप आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंटेनर शिप्स में अच्छा रहता है। जेटी पे जाओ आप, यहाँ पे खड़े होके इसकी तो आराम से पैकिंग चेंज कर सकते हो जो इसके ऊपर उसने हैच कवर रखा हुआ है। यहाँ था आई थिंक शुरू में, ये देखा, ये यहाँ पे अंदर में इसके रेस्टिंग यहाँ बना होता है, तो ये इस पे नहीं रेस्ट हम्म। किया। यहाँ इसने गलत दिखाया, इसके ऊपर है, ये वैसे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इनके अंदर बनाया होता है, स्टील का उन्होंने बनाया होता है। चलो ओके डियर, आज के लिए आपकी नेक्स्ट क्लास है, मेरी भी है।